अच्छा जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो 10.3 है और वो है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इंसानों में ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, ये मुख्तलिफ किस्म की गैसेस हैं, इनका एक्सचेंज कैसे होता है। तो हम सबसे पहले वी हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक। एयर पैसेजवे। When air enters the body, it passes through connected tubes to reach the lungs. After gaseous exchange, air moves from the lungs to the outside through the same connected tubes. These connected tubes are collectively called the air passageway. It consists of nostrils and nasal cavities, pharynx, larynx, trachea, bronchi, and bronchioles. Two openings or external nostrils lie on the ventral side of the head. They allow the air from the outside into two nasal cavities. Here, the air is warmed, moistened, and dust freed by the hairs and the mucous membrane of the nasal cavity. The nasal cavities lead into the pharynx, which is about a 4.5 inches long muscular passage. It is also lined by the mucous membrane. अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इंसानी जिस्म में जब हवा बदन में आती है तो ये कनेक्टेड ट्यूब से गुजरती है ताकि लंग्स तक पहुंच सके। गैस एक्सचेंज के बाद हवा लंग से बाहर निकलती है, वहीं कनेक्टेड ट्यूब्स के जरिए। इन कनेक्टेड ट्यूब्स को मिलकर एयर पैसेजवे कहा जाता है। इसमें नॉस्ट्रिल्स और नेसल कैविटीज, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स शामिल हैं। दो ओपनिंग्स या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ये जो नाक की ओपनिंग्स हैं, सर के नीचे वाले हिस्से पर होती हैं। ये हवा को बाहर से लेकर दो नेसल कैविटीज तक पहुंचाती हैं। यहाँ हवा को गर्म, नम और धूल से साफ किया जाता है नेसल कैविटी के बालों और म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए से। यानी जो इंसान के नाक के अंदर बाल हैं, ये उखाड़ने नहीं चाहिए क्योंकि ये हवा को साफ करते हैं और फिर हवा हमारे अंदर फेफड़ों तक जाती है। नेसल कैविटीज फेरिंग्स की तरफ ले जाती हैं, जो कि लगभग 4.5 यानी 4.5 इंचेस लंबा मस्कुलर पैसेज है। ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। लाइंड होने का मतलब है कि ये एक ही लाइन में जुड़ा होता है। The air moves from the pharynx into the larynx or voice box. It surrounds the upper part of the trachea. The cavity of the larynx is also lined by the mucous membrane. At the back of the pharynx are two passages. One opens into the esophagus and on the dorsal side, and the other opens through the glottis into the trachea on the ventral side. The glottis is guarded by a lid-like structure called epiglottis. The larynx opens into the trachea or windpipe. It is a tubular structure. It lies ventral to the esophagus, and transpiration is the loss of water extends to the chest cavity or thorax. The inner surface of the trachea is ciliated and secretes mucus. This helps to filter, moisten, and warm the incoming air. The trachea has 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings which prevent it from collapsing and keep the passage of air open. Inside the thorax, the trachea divides into two branches called bronchi. Each bronchus enters the lungs on its own side. The bronchi also possess the cartilaginous rings but smaller than those of the trachea. Each bronchus on entering the lungs divides and subdivides progressively into smaller bronchi. When the smaller bronchi attain the diameter of 1 millimeter or less, then they are called bronchioles. Bronchioles have no cartilage. Each bronchiole ends in a duct. The duct opens in a cluster of pouches which resemble bunches of grapes. Each pouch is microscopic structure and is called alveolus, plural alveoli.
The alveoli are thin-walled and provide the surface for gaseous exchange. Their walls are covered with a network of blood capillaries where gaseous exchange occurs. ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी। कहता है जब हवा फेरेंक्स से लेरेंक्स या वॉइस बॉक्स, जहां से ये हम बोलते हैं आवाज आती है, में चली जाती है, ये ट्रेकिया के ऊपर के हिस्सों को घेर लेती है। ट्रेकिया अंदर जगह है, उसके ऊपर के हिस्सों को घेर लेती है। लेरेंक्स का कैविटी भी म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, यानी इसकी जो कैविटी है ये भी एक लाइन में जुड़ी होती है। फेरेंक्स के पीछे दो पैसेजेस होते हैं, एक डॉर्सल साइड सामने वाला ऑसोफेगस कहते हैं उसको, से खुलता है, और दूसरा ग्लॉटिस के जरिए वेंट्रल साइड ट्रेकिया से खुलता है। ग्लॉटिस एक लिड जैसे स्ट्रक्चर से गार्ड किया जाता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, यानी ऊपर से ढक्कन होता है। लेरिंक्स ट्रेकिया या वाइंड पाइप से खुलता है, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये एसोफोगस के नीचे होता है और ये चेस्ट कैविटी या थोरैक्स तक एक्सटेंड करता है। ट्रेकिया के इनर सरफेस सिलिएटेड होता है और म्यूकस सिक्रीट करता है। ये हवा को फिल्टर, मॉइस्चर और वार्म करने में मदद करता है। ट्रेकिया में 16 से 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स, यानी ऐसे गोल गोल रिंग्स होते हैं जो इसे कोलैप्स होने से रोकती हैं और हवा का पैसेज खुला रखती हैं। ये ट्रेकिया जो गले में आपका गोल सा रिंग है, अगर ये बंद हो जाए तो हवा अंदर ना जाए, तो ये खुला रहता है, इसमें ये हड्डियां हैं नरम। थोरैक्स के अंदर ट्रेकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। हर ब्रोंकस अपने साइड के लंग में एंटर करता है। ब्रोंकाई भी कार्टिलेजिनियस रिंग्स रखती हैं, लेकिन ये ट्रेकिया के रिंग से छोटी होती हैं। हर ब्रोंकस लंग्स में एंटर करने के बाद प्रोग्रेसिवली ब्रोंकाई के बाद क्या होता है, प्रोग्रेसिवली छोटी छोटी ब्रोंकाई में डिवाइड होती हैं। जब ये यानी छोटी छोटी रगों में और तकसीम होती हैं, हवा अंदर तक जाती है, जो ऑक्सीजन है। जब ये छोटी ब्रोंकाई 1 मिलीमीटर या उससे कम डायमीटर तक पहुंचती हैं तो इन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। जब और बारीक हो तो नाम बदल जाता है, ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेजिनियस नहीं, कार्टिलेज नहीं होती, उनमें हड्डियां नहीं हैं। हर ब्रोंकियोल एक डक्ट में खत्म होता है। ये डक्ट एक क्लस्टर ऑफ पाउचेस में खुलता है, यानी इकट्ठे एक छोटी छोटी बोरियां हैं जो अंगूर के बाउंच यानी दाने की तरह होता है या गोशे की तरह होती हैं। हर पाउच एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और एल्वियोलस प्लूरल एल्वियोलाई कहलाता है। एल्वियोलाई पतली वॉल्स वाले होते हैं और गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। इनके वॉल्स एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, खून की नालियां से कवर्ड होती हैं जहां गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जहां से इंसान सांस लेता है और अंदर कहां तक जाता है, इसने पूरा एक डिटेल दिया है। आप इसको बार बार पढ़ोगे, मैंने ट्रांसलेट इसलिए किया है रोमन उर्दू में कि आप इसको बार बार पढ़ो, और जिस पॉइंट की समझ ना आए तो क्लास में अपनी टीचर से या अपने टीचर से, उस्ताद से आप पूछो जब स्कूल जाते हो, तो ठीक है, उसको जरूर आप पूछो उससे, वो आपको इस पे फिर मजीद समझा सकेगा।